السلام علیکم بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی اگزام کی تیاری بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ میرے پاس 10ویں کے پریویس ایئر کا اردو کا کوشچن ہے، میں اس کو حل کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو حل کریں۔ آپ میرے ساتھ حل کرتے رہیں اور جو میں سمجھاؤں اس پر دھیان دیں، کیونکہ کوشچن حل کرتے دوران میں بہت ساری ایسی چیزیں بتلاؤں گا جو آپ اگر سمجھ لیں گے تو ایگزام آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ویڈیو دیکھنا جب شروع کریں تو ساتھ ساتھ قلم اور کاپی لے کر بھی بیٹھیں، اور جو اس کے اندر کام کی چیزیں لگے اس کو نوٹ کرتے جائیں، اور جب بھی موقع ملے اس کو دہراتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس سب سے پہلا سوال ہے، آپ کے نصاب میں شامل حمد خدائے عز و جل اس کے شاعر کون ہیں؟ آپشن ہے شبنم کمالی، جگن ناتھ آزاد، سید محمد جعفری، عرفان صدیقی۔ اس کا آنسر ہوگا شبنم کمالی۔ آپ کی جو کتاب شروع ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے حمد۔ حمد کا معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف کرنا۔ حمد ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس کے اندر خدا تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھائیں، کیونکہ سوال آتا ہے کبھی کبھی کہ حمد کے بارے میں بتلائیں کہ حمد کس کو کہا جاتا ہے، حمد کے اوپر 5 جملے لکھیں۔ تو یہ سبجیکٹو میں آئے گا، اس میں آپ کو 5 نمبر کا سوال کر دیا جائے گا، 2 نمبر کا سوال کر دیا جائے گا۔ تو اچھے سے سمجھ لیں کہ حمد ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے نعت، اسی طرح نعت ہے۔ نعت ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اسی طریقے سے منقبت، منقبت ایسی شاعری جس کے اندر بزرگان دین، اولیاء دین، یعنی جو نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کی تعریف کی جائے۔ اور اسی طریقے سے قصیدہ، قصیدہ ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس کے اندر بادشاہوں، بڑے لوگوں، مالداروں کی تعریف کی جائے۔ اب ہم لوگ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے اور جو آپشن ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شبنم کمالی، اس کا تو یہ ہے کہ شبنم کمالی نے حمد خدائے عز و جل لکھی ہے۔ جگن ناتھ آزاد، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جس کا نام ہے انڈیا گیٹ، جو آپ کی کتاب کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے عرفان صدیقی ہے، یہ غزل کے شاعر ہیں۔ اور سید محمد جعفری، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جس کا نام ہے کھڑا ڈنر، وہ بھی آپ کی کتاب کے اندر ہے۔ تو شبنم کمالی، حمد خدائے عز و جل، جگن ناتھ آزاد، انڈیا گیٹ، سید محمد جعفری، کھڑا ڈنر، عرفان صدیقی، ان کی ایک غزل ہے۔ چلیے دوسرا سوال، شامل نصاب افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتے میں کون تھا؟ سب سے پہلے ہم افسانہ کو سمجھتے ہیں۔ افسانہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اگر کتاب پڑھا ہو تو اپنی کتاب کے اندر مختصر افسانہ نام سے ایک سبق پڑھا ہوگا۔ مختصر افسانہ ایسی چھوٹی کہانی جس کو ایک بیٹھک میں پڑھی جا سکے۔ بہت سارا افسانہ آپ کی کتاب کے اندر ہے، انہی افسانوں میں سے ایک افسانہ ہے آشیانہ۔ اس کے اندر سراج برکت علی صدیقی، اس کی ماں اور اس کے لڑکوں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ تو سراج جو ہے برکت علی صدیقی کا رشتے میں کون تھا؟ بیٹا تھا، ہے نا؟ سراج برکت علی صدیقی کا بیٹا، اس کو میں نشان لگا دیتا ہوں۔ اچھا آگے، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو یہ تاریخ پیدائش وغیرہ اس کو رٹنا ہی پڑے گا۔ تو ان کی پیدائش جو ہے 1951 1952 میں ہے۔ سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ آپ نے مضمون کے اندر پڑھا ہوگا سر سید کے بارے میں، ان کا مضمون ریا آپ کے کتاب کے اندر ہے۔ بہرحال انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا۔
अगला सवाल देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो ये नफ्सियात पर महारत रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में कहीं पे भी पूछा जाए और नफ्सियात या नफ्सियाती इस तरह का कोई लफ्ज लिखा हो तो आप आंख बंद करके उस पर निशान लगा देंगे, है ना। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। सातवां सवाल है, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? वह यार ये एक साइंसी सवाल है। इसका ऑप्शन आपके सामने लगा हुआ है, 0.75 सेल्सियस। आठवां सवाल, दर्ज झैल में लुत्फुर रहमान की किताब कौन है? लुत्फुर रहमान आपकी किताब के अंदर एक मजमून निगार है। उनका मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के नाम से है। इनकी लिखी हुई एक किताब है नक़्दे निगाह, तो है ना। इस सवाल का जवाब इनके लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है? नक़्दे निगाह ये होगा। उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? इसका जवाब होगा मरअतुल उरूस। है ना? नावल के बारे में आपने अपनी किताब के अंदर पढ़ा होगा, डिप्टी नज़ीर अहमद ये उर्दू के सबसे पहले नावल निगार है और मरअतुल उरूस ये उनकी सबसे पहली नावल है। एक सवाल होता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने ये नावल जो है किसके लिए लिखा था? तो ये अपनी औलाद की इस्लाह के लिए, अपनी औलाद के पढ़ने के लिए, है ना, लिखा था। अगला सवाल है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो इसका जवाब होगा तरीगना। दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। सही ऑप्शन सी है। निदा फाजली की तसनीफ चेहरे किस नौइयत की किताब है? तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, शायरी पर किताबें लिखी हैं, सफरनामे पर किताबें लिखी हैं, खाकों पर किताबें लिखी है। तो इनकी जो किताब है चेहरे, इसका ताल्लुक खाके से है। खाका भी एक सिंफ है जिसके बारे में आप 12वीं के अंदर पढ़ेंगे। शामिल निसाब नज्म हम नौजवान हैं, इसके शायर कौन है? परवेज शाहिदी। ठीक है। निदा फाजली की दो नज्में आपकी किताब के अंदर, एक है बिजली का खंभा और दूसरी नज्म बहुत आसान थी पहले, जगन्नाथ आजाद। तो इनकी नज्म है इंडिया गेट और चक बस्त। चक बस्त की नज्म है मनाजिर कुदरत या मनाजिर फितरत के नाम से। दोनों नाम इस्तेमाल होता है, तो दोनों आप जहन के अंदर रखें। मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तस्करा हुआ है? तो सौदागर की लड़की का तस्करा हुआ। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? अजीमाबाद। बकाउली किस मसनवी का किरदार है? गुलजारे नसीब का। मसहफ़ी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? मसहफ़ी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? इनकी पैदाइश भी अमरोहा के अंदर है और इनकी इब्तिदाई तालीम भी अमरोहा के अंदर है। गज़ल अरबी के किस सिनफ़ शायरी से माखूज़ है? तो गज़ल ये अरबी के कसीदा, इसी का एक जुज़ है, तशबीब उसी से माखूज़ है। तो सवाल कभी कभी इस तरीके से बनेगा जैसा आपके सामने है कि गज़ल अरबी के किस सिनफ़ शायरी से माखूज़ है? मसनवी, कसीदा, रुबाई, मरसिया। तो जवाब हो जाएगा कसीदा। लेकिन कभी कभी तशबीब का लफ्ज़ भी बढ़ा दिया जाता है, तो जब तशबीब का लफ्ज़ भी सामने आ जाए तो फिर उसका जवाब जो होगा तशबीब ही होगा, और अगर तशबीब नहीं है तो कसीदा ही उसका सही जवाब है। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? तो इरफान सिद्दीकी ये गज़ल के शायर हैं और आपकी किताब के अंदर इनकी गज़ल है। दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। मिसरा किसको कहते हैं? शेर जो होता है ना, आमतौर पर शेर दो टुकड़े में कहा जाता है, दो लाइनों में, छोटी छोटी लाइनों में कहा जाता है। तो दो छोटी छोटी जो लाइनें होती है, तो उसका जो एक हिस्सा होता है यानी एक टुकड़ा, शेर का एक टुकड़ा, वो मिसरा कहलाता है। तो देखिए,
इस मिसरे को मुकम्मल करना है। दौलत दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना है ना। शायर कहता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, तो आप उसको छिपा कर रखें, क्योंकि दुनिया वाले जो है किसी के दर्द को भी देखकर ऐसा नहीं कि उसको आसरा देते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, बल्कि उसका मजाक ही उड़ाते हैं। अगला सवाल है, दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? तो दोहे के हर मिसरे में वक्फा होता है, ठीक है ना। शमचरण, एक वशमचरण। दोहा जो होता है, तो दोहे की का जो हर मिसरा होता है उसके दो टुकड़े होते हैं, है ना। बीच में रुका जाता है, टुगेदर। बीच में जो रुका जाता है उसी को क्या कहा जाता है? वक्फा। परवीन शाकिर के वालिद क्या थे? शायर थे, है ना। और ये जो शाकिर अपने साथ लगाती हूँ, तो शाकिर इनके वालिद का तखल्लुस था, उसी निस्बत से अपने साथ शायर लगाती हैं, ये शाकिर लगाती हैं परवीन। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? तो इसमें से कुछ बहुत वाजह है, ये शाहजहां ने बनवाया था। हमदे खुदाए अज्जा वजल में जुल जलाल किस लिए आया है? जुल जलाल शान वाला। जाहिर है शान वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो इसका सही जवाब होगा खुदा के लिए। सोहेल अजीमाबादी की वफात कब हुई? 1980। अफसाना फरार इसका मरकजी किरदार कौन है? देखिए, मरकजी किरदार किसको कहते हैं? कोई भी जो कहानी होती है ना, तो कहानी का एक मेन कैरेक्टर होता है। पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, माना पूरी कहानी के अंदर वही जान होता है और वही असली होता है मेरे यहाँ। तो वही मरकजी किरदार कहलाता है। तो फरार का मरकजी किरदार हमारा महमूद है। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो इनका ताल्लुक जो है समस्तीपुर जिला से है। अगर कोई आदमी कहीं पैदा होता है, तो उसका सवाल इसी तरीके से कभी कभी पूछ लिया जाता है। कभी पूछेंगे कि इनकी पैदाइश जो है किस जिले के अंदर हुई, कभी पूछ लेंगे कि इनका ताल्लुक किस सूबे से है, किस जिले से है, माना इनकी पैदाइश किस सूबे के अंदर है, किस जिला के अंदर है। अगला सवाल देखिए, निगार अजीम की तसनीफ गर्द आवारगी, इसका ताल्लुक किस सिनफे नस्र से है? तो इसका ताल्लुक जो है सफरनामा से है, ठीक है। सफरनामा। सफरनामा, इंसान कहीं जाता है, तो जो सफर के हालात होते हैं, और इसी तरीके से जिस चीज का मुशाहिदा करता है इंसान कहीं जाकर, उसको किताब के अंदर लिखना, ये सफरनामा कहलाता है। बाल विज्ञान कांग्रेस कब मुनाकिद हुआ? 2008 के अंदर। सर सईद की वालिदा का नाम क्या था? अजीजुन्निसा बेगम। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी का अदब की पहचान, ठीक है। अदब की पहचान, अदब की पहचान एक मजमून है, वो आपकी किताब के अंदर है। तो सवाल कभी कभी इस तरीके से बनेगा कि अदब की पहचान, इसके मजमून निगार कौन है, इसके लिखने वाले कौन है? तो जवाब क्या होगा? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या पुकारते थे? ऑप्शन ए भीमा। लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? पहले बताया था ना, उर्दू ड्रामा निगारी और अ, आगा हश्र, ठीक है। ये जो है अदब की पहचान, इसके लिखने वाले कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। और रिया, इसके लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद खान। आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई? शायद इनकी पैदाइश जो है खगोल वाले इलाके में हुई है। नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र के किस सिनफ से है? तो इनका ताल्लुक जो है नाविल से है ना। डिप्टी नजीर अहमद जो है सबसे पहले नाविल निगार हैं। और इनकी कौन सी नाविल आपकी किताब के अंदर है? फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इस नाम से है। गालिब की वफात कहाँ हुई? वफात माना इंतकाल। तो गालिब का इंतकाल दिल्ली के अंदर हुआ है। इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? देखिए, ये ग्रामर का सवाल है, और इसको बताने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझिए कि इस्म किसको कहते हैं।
اسم किसी भी चीज के नाम को कहते हैं। दुनिया के अंदर कुछ भी है, हर चीज को हम पहचानने के लिए उसका एक नाम रखते हैं। तो किसी भी चीज के नाम को, किसी भी नाम को इस्म कहा जाता है। ठीक है। अब इस्म जो है दो तरीकों के होते हैं। कभी अगर नाम बोला जाए तो वो एक फिक्स चीज के लिए, खास चीज के लिए बोली जाती है। जैसे हम किसी का नाम लें, मिसाल के तौर पर अहमद। अगर हम अहमद बोलेंगे तो अहमद से वही अहमद समझ में आएगा जिसका नाम अहमद है। या एक आसान सी और मिसाल ले लीजिए, जैसे हम दिल्ली कहते हैं तो एक खास शहर हमारे जहन के अंदर आएगा, कोई दूसरा शहर हमारे जहन के अंदर नहीं आएगा। तो ऐसा नाम जिससे खास चीज समझ में आए, जिसका माना फिक्स हो, वो इसमें मारिफा कहलाता है। इसी के मुकाबले में एक इसमें नकीरा होता है। नकीरा इस तरीके से लिखते हैं, नून काफ अ, रॉ, काफ रा और हा। हा बना देता हूँ अच्छे से। तो नकीरा, इसमें नकीरा ऐसा नाम कि जब नाम लिया जाए तो कोई फिक्स चीज हमारे जहन के अंदर नहीं आवे। मिसाल के तौर पर हम शहर कहते हैं, तो शहर जब बोलेंगे तो कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कोई भी शहर हो सकता है, कोई फिक्स शहर नहीं है। तो देखिए, अब सवाल क्या है, इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। अब इसकी तफसील क्या है कि क्या क्या किस्में हैं, जब मैं ग्रामर की वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर इसको तफसील से जिक्र करूंगा। आगे देखिए, दर्ज झैल में माजी शक्किया की मिसाल कौन है? माजी शक्किया ऐसे फेल को कहते हैं जिसके अंदर गुजरे हुए जमाने में, पास्ट में, काम के होने या ना होने का शक हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हो सकता है कि कोई आया होगा, जब हम कोई निशान देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन क्या है, मैं पढ़ता हूँ, वो लोग पढ़ते होंगे, वो जाएगा, तुम खा चुके हो। तो अब बताइए शक किसके अंदर पैदा हो रहा है, होने या ना होने का? तो वो लोग पढ़ते होंगे, हालांकि ये मिसाल सही नहीं है। इसका जवाब ये होना चाहिए, वो लोग पढ़े होंगे, क्योंकि माजी शक्किया के अंदर काम जो है गुजरे हुए जमाने के अंदर होता है। चलिए, अगला सवाल है, ईदगाह क्या है? इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें फाइल, हासिल मस्दर। ईदगाह ये इसमें ज़र्फ है, किसी भी जगह के नाम को और किसी भी वक्त के नाम को इसमें ज़र्फ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मस्जिद है, ये एक जगह का नाम है। बाजार है ना, ये एक जगह का नाम है, ये भी इसमें ज़र्फ है। इसी तरीके से सुबह है, सुबह जिसको हम कहते हैं, ये एक टाइम का नाम है। शाम ये एक टाइम का नाम है। महीना ये एक टाइम का नाम है। तो ये सब भी इसमें ज़र्फ है। अब याद रखिएगा कि वो इसमें ज़र्फ जो जगह के लिए बोले जा रहे हैं वो ज़र्फ मकान कहलाता है ना। ध्यान से इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो जगह का नाम ज़र्फ मकान कहलाता है, और वो इसम जो वक्त के लिए बोला जा रहा हो वो ज़र्फ ज़मान कहलाता है। ज़मान, ठीक है। जा, मीम, अलिफ और नून, है ना। जैसे सुबह है, शाम है, रात है, दिन है, ये सब ज़र्फ ज़मान है। आगे आइए, जिस्म की जिद क्या होगी? जिस्म की जिद रूह। इबादत की जमा क्या होगी? इबादात। अकरम बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है? सिफत, ठीक है। सिफत ऐसा इसम होता है जो किसी की खूबी या खराबी बतलाता है। तो बहादुर लफ्ज जो है अकरम के बारे में बतला रहा है, तो अकरम, ये बहादुर जो है वो क्या है? सिफत है। असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? ये तखल्लुस है। शायर अपने नाम के तौर पर जो इस्तेमाल करता है अपनी शायरी के अंदर, वो तखल्लुस कहलाता है। दर्ज झैल में इसमें नकीरा की निशानदही कीजिए। अभी मैंने आपको इसमें नकीरा के बारे में बतलाया। इसमें नकीरा ऐसा इस्म जो गैर मुतय्यन चीज के लिए बोला जाए। तो इसमें अरशद, ये भी एक मुतय्यन चीज है।
پٹنہ یہ بھی ایک متعین چیز ہے، ہمالیہ پہاڑ یہ بھی ایک متعین چیز ہے، اور ندی ظاہر ہے یہ متعین نہیں ہے، کیونکہ جب ندی کہیں گے تو کون سی ندی ہماری مراد ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر نہیں آ رہا ہے، تو ندی اس کا صحیح جواب ہے۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ آواز، اذان، نماز، حج۔ ہم ہر ایک کے اوپر جملہ بناتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے یعنی مؤنث ہے یہ، اذان ہو رہی ہے یہ بھی مؤنث ہے، نماز ختم ہو گئی یہ بھی مؤنث ہے، تو آپشن حج یہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے، اکرم کل پٹنہ آئے گا، یہ زمانہ کی کون سی قسم ہے؟ زمانہ کی تین قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ، حال جو ہے موجودہ زمانہ، پریزنٹ، اور مستقبل یہ آنے والا زمانہ، فیوچر۔ ٹھیک ہے، تو اکرم کل پٹنہ آئے گا مانا یہ آنے والے زمانے میں ہوگا، آنے والے وقت میں ہوگا، تو یہ زمانہ کی کون سی مثال ہو گئی، کون سی قسم ہو گئی؟ پہلے مستقبل کی۔ اچھا دیکھیے، افسانہ واترک کے کنارے کس کی تخلیق ہے؟ تخلیق مانا لکھا ہوا ہے نا، تو پننا لال پٹیل نے یہ افسانہ لکھا ہے۔ مہاشویتا دیوی نہیں، تیلگو کس صوبہ کی زبان ہے؟ آندھرا پردیش۔ اب آندھرا پردیش سے کاٹ کر ایک نیا اسٹیٹ بنایا گیا ہے تلنگانہ، تو اس کے اندر تیلگو بولی جاتی ہے۔ وارث شاہ سے کس زبان کی نظم ہے؟ یہ پنجابی زبان کی نظم ہے۔ 50 کوشچن ہو گئے ہیں، اب اگلی ویڈیو میں 50 کوشچن اور کریں گے۔